Assalamu alaikum. So, dear students, welcome back after the long vacations. So, I hope you all were very fine after this pandemic. So, today we will study about the slope of the tangent line. So, let's begin with today's topic. First of all, consider please now look at this. This is any curve, any parabolic curve, okay, whose equation who is given as y equal to f of x. Okay, this is a function. Okay, so there, if we point 2 points there, p and q. So on this point, if we draw any 2 points, p on this side and q on this side, so these points have coordinates like such as here is x naught, and if we want to know about the coordinates of q points at x-axis, such as let this is x. Okay, so at y-axis, y-axis, the coordinates of these points may be denoted as f of x naught, and of the q point is f of x. Okay, so similarly we can locate these. We can locate the coordinates on any Cartesian coordinate system, such as x naught and x, f of x naught, f of x. Okay, so the line joining these 2 points p and q, we already know that in entity class this is known as secant line. Okay, so if we move this secant line to parallel to the this point p point, so this line is known as tangent line. Okay, so as we know that the equation for the secant line is obtained through the 2-point formula, as just as the slope of the PQ is given as f of x final minus initial point divided by final minus initial point x minus x naught. Okay, similarly as for the purpose of tangent line, so here we examine that we are approaching this point to this point. So what are we doing? This point is approaches to this point as p approaches q approaches to p point. So similarly there is not much difference, but we can use some extent of the notation, just like limit x approaches to x naught, this x approaches to this point. So if we approaches this point to this point, so we can find the slope of the tangent line through this formula. Slope of the tangent line is given as limit x approaches to x naught, f of x minus f of x naught upon x minus x naught. Okay, let this x minus x naught is taken as h. We have taken h equal to x minus x naught. So similarly, the tangent curve, the tangent formula may be alternatively may be written as x approaches to h, f of x naught plus h minus f of x. Now this here x naught can be also this is the simple notation, as we if we want to know about the value of x, we can easily find that that can be easily obtained through this as so this on f of x, this is same equation, only we have replaced h as x minus x naught. Okay, hope you can understand. Further, if there there occurs any query regarding this, we will live with you on the Zoom app on the live class. Inshallah, every query will be answered in that live session. Okay. जो हमने पहले सीखा था स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन में, एक मरतबा फिर उसको जो है उर्दू में आपके लिए बताना चाहूँगा। ठीक है, देखें, हम सबसे पहले ये चीज़ तो हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। सपोज कर लें यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देख लें कोई भी हमारे पैराबोला हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये पैराबोला है।
ठीक है। सपोज कर लेंगे कोई पैराबोला है, ठीक है। अब इस पैराबोला में हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज कर लें ये एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम नाम देते हैं P का, ठीक है। और ये दूसरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इसको हम नाम देते हैं Q का, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये तो जो लाइन होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती है लाइन, उसको आप क्या नाम देते हैं? सीकेंट लाइन, ठीक है। यानी कोई भी कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी लाइन जो है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, जो डिफरेंट पॉइंट्स हो, तो उसको आप कहते हैं सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी अप्रोच होती है, अगर हम यहां पे यानी इसको हम यहां तक शिफ्ट करना चाहें, ठीक है, यानी उसी पॉइंट के हवाले से, ठीक है। अब इसको आप नाम देते हैं टेंजेंट लाइन का, ठीक है। सॉरी, अच्छा, ये टेंजेंट लाइन किस तरह बनती है? अगर यानी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे, ठीक है। सपोज कर लें ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो इस वाली पॉइंट्स पे जो एक्स की वैल्यू है, इसको सपोज कर लें ये है एक्स नॉट, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इस पॉइंट पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू बन रही है, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या बनेगी? सपोज कर ले यहाँ पे भी कोई y की वैल्यू है, इसको हम कह देते हैं f ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी y की वैल्यू है, यहाँ पे भी हम इसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू f ऑफ x है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपसे टेंजेंट लाइन के हवाले से। टेंजेंट लाइन हमारे पास तब बनती है, यानी जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये वाली लाइन है सीकेंट लाइन को आप इस तरह अप्रोच करते जाए कि वो आपकी टेंजेंट लाइन बन जाए, ये अप्रोच होती है, ठीक है। वो अप्रोच कैसे करते हैं वो हम मजीद आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक मरतबा आपको अगेन बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा? देखें, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल बनता है, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, कितना डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इंटर क्लास में, ठीक है। अब ये जो अप्रोच होती है, इस सिलसिला में मैं मजीद बताना चाहूंगा। अच्छा, ये जो सीकेंट लाइन थी P से लेके Q तक, ठीक है, इसका स्लोप फॉर्म जो है आप किस तरह फाइंड करते हैं? जो आप हम इंटर क्लास में जो फार्मूला पढ़ के आए हैं वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इसका स्लोप जो है हम सिंपली फाइंड कर लेते हैं। इसका ऐसे बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये क्या है? आपका स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, इसको आप नाम दे दें ठीक है। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इसको हम टेंजेंट लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। यानी सीकेंट लाइन को अगर आप उसी पॉइंट्स के थ्रू अप्रोच करना चाहें, सपोज मैं मजीद आपको बता देता हूँ वो इस तरह कि देख लें, मैं हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है ना वो किस तरह हम लिखते हैं। जो आपकी सिंपली जो आपका ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स इस तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी x अप्रोचेस टू x नॉट, यानी ये वाला x यहां तक आ जाए, ठीक है। किस वाली इक्वेशन में? जो हमने ऊपर सीकेंट लाइन के हवाले से पहले डिफाइन की थी उस सिलसिले में। तो ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये जो नीचे है हम इसको h के बराबर लेते हैं, ठीक है, h इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। सपोज कर ले हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं,
पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, मजीद इसका एक एक प्रॉब्लम करते हैं, उसमें हम मजीद समझते हैं। ठीक है, और आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें भी हम आपको मजीद क्लैरिफाई करते जाएंगे इस सिलसिले में अगर कोई भी इशू है। ठीक है,